Dear students, today we will read a poem. The title of the poem is Keeping Quiet. The name of the poet is Pablo Neruda. In this poem, Pablo Neruda uh, emphasizes the need of introspection and to keep silent for some time. Uh, it seems that the poet is in a very sorrowful mood due to the increasing wars around the world, and so he has written this poem to give a message to the people of the world to introspect for some time so that they can evaluate about their activities, actions, and they get some time to judge themselves whether they have done something wrong or good. So let us read the poem and find out in detail what Neruda advises us or teaches us through his poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Here on this page on the right side, we can see a picture. This picture is animated, means it seems that this is a picture of the earth, or on the earth there is a picture of a tree, but the tree is in the shape of a man. It means the poet wants to convey a message that like human beings, earth and trees are also living things, living beings, and it might be that the author wants to convey the message that we should not only protect the humans but also we should keep our environment and also the earth safe from all over about our bad activities. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. The poet wants us that we should stop at least for a moment and we should not use any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Means we should stop for some time and even we should not make any movement with our arms or legs also. तो यहाँ कवि इसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेंजा के अंदर यही कहता है कि भाई हम अपनी पृथ्वी के बारे में, अपने वातावरण के बारे में सोचें, न केवल मनुष्यों के बारे में परंतु पृथ्वी और पशु पक्षियों के बारे में भी सोचें, और कुछ क्षण के लिए हम अपने आप को बिल्कुल ऐसी स्थिति में कर दें कि हम अपने हाथ और पैरों को भी ना हिलाएं, यानी कि बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल कीपिंग क्वाइट के बारे में वो बात करता है यहाँ पे. इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines, we would all be together in a sudden strangeness. Exotic, strange, very unusual moment. कवि कहता कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेंज मोमेंट होगा, एक बिल्कुल अद्भुत क्षण होगा. कोई रस नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, किसी इंजन की, किसी गाड़ी का कोई शोर शराबा नहीं होगा, किसी भी प्रकार के व्हीकल की कोई आवाज़ें नहीं होंगी, और ऐसी स्थिति में हम सभी टुगेदर हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, और एक बिल्कुल स्ट्रेंज चीज़ होगी, ये बिल्कुल अद्भुत चीज़ होगी. तो यहाँ पर कवि पूरी तरह से कीपिंग क्वाइट के बारे में बात करता है, इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. पोइट कहीं ना कहीं फिशरमैन के बारे में बात करता है कि जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र के अंदर मछलियों को
या चाहे छोटा या चाहे बड़ा जानवर या जीव क्रिएचर कोई भी समुद्र के अंदर है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कब? जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब वो कुछ समय के लिए कीपिंग क्वाइट करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और कह रहा कि न केवल लैंड के ऊपर, परंतु यहाँ पर सी के बारे में भी, वाटर लेवल, वाटर के बारे में भी, पानी के अंदर रहने के वाले जीव जंतुओं के बारे में भी कवि कहता है कि हमें न केवल लैंड के ऊपर जो एनिमल्स हैं, परंतु उनके साथ साथ जो क्रिएचर्स वाटर में हैं उनको भी तंग नहीं करना है। और जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्म मूल्यांकन, आत्म मंथन करेंगे, तो हमें अपने घावों के बारे में, अपने दुख दर्दों के बारे में, दूसरे लोगों के दुख दर्द और उनके जो उनको चोटें हैं उनके बारे में सोचने का मौका मिलेगा। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. कवि पोइट जो है पैब्लो नेरूदा, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक आगाह करना चाहते हैं। यहाँ पर वॉर्स के बारे में, युद्धों के बारे में बात करते हैं। कवि कहीं ना कहीं वर्ल्ड को मैसेज देना चाहता है कि जो युद्ध हैं वो कभी भी किसी का बेनिफिट करने वाले नहीं होते। हमें किसी भी प्रकार के वॉर से, बैटल से, युद्ध से अपने आप को बचाना है। ग्रीन वॉर, शायद ग्रीन रेवोल्यूशन से वो अर्थ है उनका, यानी कि ग्रीन का मतलब होता है हरियाली, यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के बारे में शायद वो बातें करते हैं। गैस, यानी कि प्रकृति के अंदर जो जितनी भी गैसेस हैं उनके बारे में बातें करते हैं। या फिर उसके बारे में जो फायर का मतलब जो एटम बम वगैरह या और किसी तरह का जो युद्ध होता है उसके बारे में बात करते हैं। और कहते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो उसका अंत जो है बहुत बुरा होता है और कोई सर्वाइवर नहीं बचता। सर्वाइवर मतलब कोई बाद में उन चीज़ों की व्याख्या करने वाला या उनकी तारीफ करने वाला नहीं बचता। और कहता कि इन चीज़ों को छोड़ें और चलिए नए और साफ कपड़े पहनते हैं और सभी अपने भाइयों, यानी कि कवि यहाँ पर पोइट जो है वो सारे वर्ल्ड के जो सिटीजन्स हैं उनको ब्रदर्स कहता है। और कहता कि कुछ समय के लिए कुछ भी ना करें, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हो जाएं और इंट्रोस्पेक्ट करें और आत्म मंथन करें। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। कवि कहता है कि कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना है, यानी कि नो वर्क, कोई भी काम बिल्कुल पूरा दिन नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं करता। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, क्योंकि बिल्कुल इनएक्टिव होने का मतलब तो डेथ हो जाती है। मैं तो एक्टिव रहने की बात करता हूँ, मैं डेथ की बात नहीं करता। यानी कि यहाँ भी पोइट जो है वो पेसिमिज्म की बात नहीं करता, ऑप्टिमिज्म की बात करता है। इफ वी वर नॉट so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोइट यहाँ पे पैब्लो नेरूदा जो है वो कहते हैं कि हमें न केवल अपने बारे में परंतु दूसरे लोगों के बारे में एनालाइज करने का मौका मिलेगा। अपने गुड और बैड डीड्स के बारे में जो है वो एनालाइज करने का टाइम मिलेगा जब हम कीपिंग क्वाइट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। और एक बहुत बड़ी ह्यूज साइलेंस होगी। ह्यूज मतलब बहुत बड़ी साइलेंस, चुप्पी होगी। और ये जो है जो उदासी छाई हुई है, शायद इस जो इंट्रोस्पेक्शन है उसके कारण जो सैडनेस है शायद वो भी ख़त्म होगी और एक हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी उससे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और जो वॉर्स वगैरह हैं, जब हम बिल्कुल इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते तो हम बिल्कुल दूसरे लोगों की ड्रॉबैक्स, उनकी शॉर्टकमिंग्स, उनकी कमियां देखते हैं और जो है फिर इसी कारण जो है वॉर होता है। तो कभी इसलिए कहना चाहता है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है सो दैट हम अपने आप को एनालाइज कर सकें और अपने आप को डेथ से और जो है वॉर से बचा सकें। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। कह रहा कि हम अर्थ से भी बहुत कुछ जो है यहाँ पे टीचिंग्स ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं कि जो एक चीज़ एक समय पे डेड दिखती है वो कुछ समय के बाद अलाइव हो जाती है। डेड का मतलब क्या?
कि कोई चीज़ जो है वो एक टाइम पे ऐसा लगता है जैसे वो मृत है, मतलब वो समाप्त होगी। नेचर में कई बार हमें लगता है कि एक सीजन ऐसा आता है कि जो ग्रास वगैरह लैंड पे वो बिल्कुल डेड लगते हैं हमें, जैसे वो ख़त्म हो गई, येलो हो गई। लेकिन जब बारिश होती है, एक ऐसा जो सीज़न आता है, तो वो फिर दोबारा हमें अलाइव होती है। वही हमारी स्थिति कहता है कि इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो शायद वो हमें एक नई जो है एनर्जी मिलेगी और नया एक लाइफ मिलेगा, और शायद हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी एक बदला हुआ होगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और जो पोइट हैं वो 12 तक काउंट करने के लिए कहते हैं। 12 शायद यहाँ पे इसलिए लिया गया क्योंकि हमारा जो क्लॉक होता है, हमारी जो वॉच होती है, उस पे 12 नंबर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे 12 तक काउंट की बात करते हैं। और कहते हैं हमें क्विट रहना, शांत रहना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, और उसके बाद जो है हमें आगे जो है ज़िंदगी में आगे